ایک جنگل میں بندروں کی ایک ٹولی رہتی تھی۔ اس ٹولی میں 2 بچے بھی تھے جو اتنے شرارتی تھے کہ ان کے ماں باپ بھی ان سے بہت زیادہ تنگ آ گئے تھے۔ اسی جنگل میں ایک ننھا زراف بھی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سیدھا سادہ اور بھولا بھالا تھا۔ ایک مرتبہ چرتے چرتے وہ جنگل کے اس حصے میں آ گیا جہاں بندروں کی یہ ٹولی درختوں سے پتے اور پھل فروٹ توڑ توڑ کر کھانے میں مگن تھے۔ دونوں چھوٹے شرارتی بندروں نے زراف کو دیکھا اور انہیں حیرت ہونے لگی، کیونکہ ان بندروں نے بھی کبھی ایسا کوئی بھی جانور نہیں دیکھا تھا۔ بندر کے ایک بچے نے کہا، ارے دیکھو تو کتنا عجیب و غریب جانور ہے، آؤ اسے چڑھاتے اور ستاتے ہیں۔ دونوں بندر کو دیکھتے ہی فلانگے اور درخت پر پہنچ گئے جس کے نیچے کھڑے ہو کر زراف گھاس کھا رہا تھا۔ اسی درخت کے ایک شاخ پر بیٹھ کر دونوں نے زراف سے کہا، اے لمبو، تیرا کیا نام ہے؟ زراف نے بڑی نرمی سے کہا، میں زراف ہوں، کیا مجھ سے دوستی کرو گے؟ تم لوگوں کے نام کیا ہیں؟ دونوں بندر شرارت سے کھلکھلا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، تجھ سے ہم کیوں دوستی کرنے لگے؟ کتنا بدصورت ہے تو، مینار کے جیسی گردن تیری لمبی ہے جیسے پیڑ ہو کوئی۔ ہمیں نہیں کرنا ایسے بڈھنگے جانور سے کوئی دوستی۔ اتنا کہہ کر دونوں بندر زراف کو چڑھانے لگے۔ اتنا ہی نہیں، ایک بندر نے درخت سے ایک پکا ہوا پھل توڑ کر زراف پر پھینک مارا۔ پھل زراف کے منہ پر لگا اور پھوٹ گیا اور اس کا رس گودا زراف کے چہرے پر پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بندر کہا مار کے خوب ہنسنے لگے اور خود تو فلانگتے جنگل میں درخت بھاگ گئے۔ زراف چارہ روہنسا ہو کر وہ وہاں سے چلا گیا اور بیچارہ منہ لٹکائے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ ایک دن دونوں شرارتی بندروں نے یہ طے کیا کہ وہ جنگل میں خوب دور تک اکیلے گھومنے اور سیر سپاٹا کرنے کے لیے چلیں گے، کیونکہ وہ لوگ اپنے ماں باپ کی ڈانٹ پھٹکار سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور ان سے آزادی چاہتے تھے۔ صبح صبح جب باقی بندر سو رہے تھے، یہ دونوں شرارتی بندر چپکے سے نکل پڑے۔ کچھ ہی وقت میں وہ بندروں کی ٹولی سے بہت دور نکل گئے۔ جب انہیں زوروں کی بھوک لگی تو ان دونوں نے پیڑوں کی پتیاں اور پھل فروٹ کھا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ انہیں اس طرح گھومنے پھرنے اور موج مستی کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ دوپہر ہو چلی تھی۔ وہ دونوں گرمی سے بچنے کے لیے ایک درخت کے ہرے بھرے شاخ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے نیچے ایک شیر آرام کر رہا تھا اور پیڑ کے آس پاس ایک بڑا ہرا بھرا میدان تھا اور میدان کے کنارے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بندر اس سامنے منظر میں ایسا کھویا کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ یہاں ایک شیر بھی موجود ہے۔ لیکن جب شیر نے اس کے چہرے پر بیٹھی ہوئی مکھیوں کو اڑانے کے لیے غرایا تو بندروں نے شیر کو دیکھ لیا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ بری طرح ڈر گئے، لیکن کچھ ہی دیر بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم درخت کے اوپر محفوظ ہیں۔
क्योंकि उनके अंदर शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिए यहाँ भी उन्हें शरारत सूझने लगी और उन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और पेड़ का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर को बहुत दर्द हुआ। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए इधर उधर देखा। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसके नजर में ये दो बंदर आ गए। बंदर खीखी करके हंस रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक ना हंस सके क्योंकि शेर अब उनसे बाहर हो रहा था। उसने गर्जदार आवाज में दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं इस जंगल का राजा हूं? उस वक्त फौरन उस दरख्त से नीचे उतरो, मैं तुम दोनों को खाकर उस गुस्ताखी की सजा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। उन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर उनको इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर मजीद गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने पैरों को समेटकर उस पर नग की तरह तेजी से छलांग। दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और उसके तेज नुकीले दांत उनकी तरफ हैं और वो बड़ी तेजी से उछलते हुए बिल्कुल उनके करीब आ गया है। दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ गए और उनके सारी शरारत धीरे धीरे रुक गई और वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह लिपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच सका जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे हुए थे। शेर ने दोबारा जबरदस्त छलांग लगाई। बंदरों की हालत बड़ी पतली हो गई थी। वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन वहां उनकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो तो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर भाग कर आए थे। उस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी न था। वो छलांग लगाकर उस पर चले जाते और ना ही उस दरख्त पर की जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे। ऊंचाई की तरह कोई मजबूत शाख थी जिस पर जाकर वो बैठ सकते। समझ ले कि शरारती और नाफरमान बंदर आज बुरी तरह फंस गए थे। शेर के तेज दहाड़ और गुर्राहट से उनकी कानों के पर्दे फट रहे थे। उनका कलेजा भी कांप रहा था और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। वो उस हालात में थे कि उन्हें कुछ समझाया नहीं जा रहा था। एक एक उनके कानों में धीमे से आवाज आई कि घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। चुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरे पीठ पर उतर आओ। वो क्या देखते हैं कि उनकी ठीक ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान से उसी जिराफ का सर निकला हुआ था जिसकी उन लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले खूब मजाक उड़ाया था। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा। आज वही जिराफ हमारे जान बचाने के लिए तैयार है। उस जिराफ को उस दिन की शरारतों और मजाक वगैरह का जरा भी ख्याल नहीं है। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीची कर ली। जिराफ ने कहा, मेरे दोस्तों जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देखा तो वो हम तीनों को खा जाएगा। बंदरों ने अब
भला झिगझिगा उसकी गर्दन पर फिसलते हुए जिराफ को पीठ पर बैठ गए और जिराफ उन्हें ले जाए तेज रफ्तार से वहां से खिसक गया। शेर को पहले तो पता नहीं चल सका कि वो क्या माजरा है, लेकिन जब उसने जिराफ की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भागते निकलते हुए देखा तो उसने दहाड़ते हुए उनको तीनों का पीछा कर लिया। बंदरों ने उनका पीछा करते हुए शेर को देखा तो उनकी जान निकलने लगी और वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। शेर पूरी ताकत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था और गुर्राते जा रहा था। जिराफ ने बंदरों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो। शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच हुआ भी ऐसा ही कि जिराफ ने शेर को काफी पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पर पहुंचकर जिराफ रुक गया। बंदर छलांग लगाकर उसकी पीठ से नीचे उतर गए। तब जिराफ ने उन दोनों से कहा, उस दिन तुम दोनों मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों को बहुत मजाक उड़ा रहे थे। आज देख लिया ना, उन्हीं की वजह से तुम लोगों की जान बच सकी है। लंबी गर्दन की वजह से ही मैं तुम दोनों को दूर दूर से देख सका और दरख्त से तुमको उतार सका, और लंबी टांगों की वजह से तेज दौड़ सका। बंदर उस पर क्या कह सकते थे। उन दोनों ने शर्म के मारे अपनी गर्दन झुका ली और खामोश रहे। उनकी ये हालत खामोशी और शर्मिंदगी को देखकर जिराफ ने हंसते हुए कहा, खुद कह दिया, चलो छोड़ो उन बातों को, भूल जाओ पिछले किस्से को। अब आज से तुम दोनों मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रोजाना खेलोगे ना। जिराफ की यह भलाई देखकर दोनों शरारती बंदरों को भी बोलती से हंसी आ गई। उन्हें खुद की हरकतों पर सख्त गुस्सा आने लगा। उन लोगों ने उतने अच्छे और प्यारे जिराफ को क्यों सताया था और उसके मजाक क्यों उड़ाया था। उन दोनों ने इसी वक्त जिराफ से माफ़ी मांगी। जिराफ ने कहा, दोस्तों माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े दिल वाले जिराफ की ये बातें सुनकर उन लोगों ने फैसला कर लिया कि आज के बाद से वो शरारत नहीं करेंगे। और बड़ी नरमी और प्यार से उन दोनों ने जिराफ से कहा कि हमने तुम्हें जानबूझकर बहुत सताया था। आज से हम किसी को भी नहीं सताएंगे, ना किसी को बुरा भला कहेंगे। और रही तुम्हारी बात, तो आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो, क्योंकि दोस्त वही सच्चा है जो सुख से ज्यादा दुख में काम आए। और आज तुमने दुख में हमारा साथ देकर ये साबित कर दिया कि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो। दोनों बंदरों की ये बात सुनकर जिराफ को बड़ी खुशी हुई और वो खुशी से नाचने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं इससे अच्छी और कहानी में।